Dear students, welcome back. Students, today we will cover our next sum from exercise number 5.2, and the unit name is square and square root of class 8th math subject. So dear student, this is very important question. This is find the smallest. This is question number 7 actually, and it is find the smallest perfect square which is divisible by. तो प्यारे विद्यार्थियों इस विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਨੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 8 12 ਤੇ 23 28 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ 12 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ 28 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ 12 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ 8 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ काम की होएगा एलसीएम फाइंड आउट करना तो इत्थे विचों एलसीएम आई थिंक तुहानू पता होएगा कि किद्दां फाइंड आउट करते हैं एलसीएम लई असीं की करते हैं जी एलसीएम लई प्यारे विद्यार्थियों असीं 8 12 ਤੇ 28 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਨ ਵਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ तो ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਅਨਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पर चलो एलसीएम तुहानू पता ही है कि सब तो पहला 2 इन्हां दे विच आपां ये कह सकते कि कॉमन फैक्टर इन्हां दा कॉमन मल्टीपल आ रहा है ठीक है उस तो बाद फिर ये देखो 2 दे फिर कॉमन मल्टीपल बन जाएगा 2 3 इत्थे किन्ने आ जाएगा 7 ठीक है हुण इत्थों देखो आ 2 हैगा 2 नू आपां इस तरीके इत्थे लिख लांगे 3 नू इहदे विच इहदा मल्टीपल नहीं है इस करके उहनू इत्थे एज इट इज ही लिख देना है ठीक है उस तो बाद इत्थे हुण 3 नू 3 ते जाएगा 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 7 ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ 7 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 7 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 1 ਹੀ ਮਤਲਬ 1 1 ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ 7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ तो इस तरह बच्चों ये सिंपल वे ਹੁੰਦਾ एलसीएम ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ एलसीएम ਠੀਕ ਹੈ एलसीएम ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ तो एलसीएम ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 into 2 into 2 into 3 into 7 ओके तो ਇਹ एलसीएम ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ एलसीएम ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ तो मल्टीप्लाई करन तो बाद 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ठीक है 8 आ गया तो ये 7 ਤੇ 21 21 ਨੂੰ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 8 1s are 8 8 2s are 16 तो बच्चों ये आ गया 168 ठीक है तो 168 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ and this is not a perfect square ठीक है तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ but 160 is not a perfect is not a okay इत्थे not a लिखांगे कि 168 ਜਿਹੜਾ ਹੈ not a perfect square ठीक है it is not a perfect square तो ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ perfect square नहीं है ठीक है तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ perfect square बनाना है तो we have to make it perfect square ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 168 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ 2 ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਅਗਲਾ 3 ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਅਗਲਾ 7 ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 168 ਸੀ तो 168 थोड़ी मैं स्पेस दे देना ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ ਦੇਖੋ 2 into 2 into 2 into मैं ਇੱਥੇ स्पेस दे ਦਿੱਤੀ 3 into 3 ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਚਲੋ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ 7 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਅਪ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ
तो सब तो पहला तुसीं इत्थे की है 2 नाल मल्टीप्लाई किया, ये तो पेयर सीगा, हुण ये भी पेयर बन गया, ठीक है। तो इहदा मतलब 2 नाल इधर भी मल्टीप्लीकेशन होनी है। उस तो बाद 3 नाल मल्टीप्लीकेशन की, तो 3 नाल मल्टीप्लीकेशन इधर भी होनी है। फिर उस तो बाद 7 नाल मल्टीप्लीकेशन की, हुण देखो सारियां दे की है पेयर बन गए, ठीक है। तो आ सारियां दी जदों मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बच्चों तुहानूं 1080 जिहड़ा है वो नंबर मिलेगा। ते 1 सेकेंड इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन करके इन्हां नूं, एक मिनट जरा मैनूं मल्टीप्लाई कर लैण दो। ये विचों मल्टीप्लाई करन तो बाद तुहानूं 7056, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी जो कि एक परफेक्ट स्केयर होएगा। और ये परफेक्ट स्केयर जिहड़ा है वो 8, 12 ते 28 दे नाल डिविजिबल है, ठीक है। 8, 12 ते 28 दे नाल की है डिविजिबल है, ठीक है। तो ये बच्चों इहदा आंसर होएगा, इहदा आंसर जिहड़ा है 7056 होएगा। ओके, नैक्सट साडा क्वेश्चन जिहड़ा है वो है फाइंड दी स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्केयर विच इज डिविजिबल बाय। हुण यही क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट है वो असीं करांगे। आओ प्यारे विद्यार्थियों, नैक्सट पार्ट जिहड़ा है वो असीं करदे हां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 27, 24 ਤੇ 15 ਹਨ, ठीक है। 27, 24 ਤੇ 15, ठीक है। तो 27, 24 ਤੇ 15, ओके जी। तो इसनों सब तो पहला देखो ये की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਿਹੜਾ कि 2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ है, 27 ਨੂੰ ਆਪਾਂ एज इट इज लिख देना 12 और इत्थे 15 ਨੂੰ एज इट इज ਅਸੀਂ लिख ਦਾਂਗੇ, ठीक है, 15। ओके, उस तो बाद फिर 2 ਤੇ जाएगा 27, 6, 15, ठीक है। 2 ਤੇ जाएगा 27, 3, 15। ਹੁਣ ਇਹ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है 3 का मल्टीपल है 9 तीय 27, 3 एकम 3, 5 तीय 15, ठीक है। फिर उस तो बाद 3 ते जाएगा ये वाला 3, 9 जिहड़ा 3 का मल्टीपल है, इस करके इहनूं 3 ते जाना है, बाकियां नूं एज इट इज लिख देना। उस तो बाद 3, 1, 1, 5, ठीक है। तो इस तो बाद 5 जिहड़ा है वो 5 का ही मल्टीपल है, तो लास्ट में साडे कोल नंबर बचा। ओके, तो इहदा मतलब ये होया कि इन्हां सारियां दा एलसीएम जिहड़ा है वो कितना बनिया, देखो 2 दे पेयर 2 2 बार है, ठीक है। ये 2 एक बार है, इनू भी आप इत्थे ले देता। उस तो बाद 3 जिहड़ा है वो कितनी बार है, देखो 3 बार, ठीक है, 1, 2, 3, ओके। और 5 जिहड़ा है वो एक बार है, ओके। तो अगर तुसीं इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर दो, इन्हां नूं मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1080 जिहड़ा है 1080 जिहड़ा वो बनेगा इन्हां दा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 27, 24 एंड 15, ठीक है। एंड दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्केयर अगेन, ठीक है। ये भी एक परफेक्ट स्केयर जिहड़ा है वो नहीं है, ठीक है। तो तुसीं इत्थे लिखोगे कि 1080 इज नॉट ए परफेक्ट स्केयर, ठीक है। दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्केयर। तो इनू परफेक्ट स्केयर बनाने लई, ठीक है, टू मेक इट परफेक्ट स्केयर वी विल मल्टीप्लाई, ठीक है, वी विल मल्टीप्लाई। असीं इहनूं मल्टीप्लाई करांगे किहदे नाल, देखो 108, मैं इत्थे जगह छड्ड दित्ती, ठीक है, थोड़ी होर स्पेस दे दिंदे आ जी। तो 2 कितनी बार है, देखो 2 आ रहा है इत्थे 1, 2, 3 बार, ठीक है। उस तो बाद 3, 3, 3, ठीक है, इत्थे स्पेस आ गई इंटू 5 इंटू डैश, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ देखो मल्टीप्लीकेशन, 1 सेकेंड, यस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सब तो पहला एक 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे, पहला तो पेयर बनता है, ठीक है। तो आ 2 ਜਿਹੜਾ है ਇਹਦੇ भी पेयर बन गए, आ 3 का पेयर बन रहा, इत्थे 3 एक बार है, इनू भी 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई तुसीं एक बार कर दूंगे, ਇਹਦਾ भी पेयर बन गया। 5 इकल्ला है, 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करती तो 5 का पेयर बन गया, ठीक है जी। तो ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मल्टीप्लाई ਕੀਤਾ, तो स्टूडेंट्स इन्हां ਨੂੰ मल्टीप्लाई करन तो बाद तुहाडे कोल आंसर जिहड़ा है वो आएगा 32,400, ठीक है, 32,400, जो कि विच इज ए परफेक्ट
स्केयर, एक की हैगा परफेक्ट स्केयर है। ओके, तो दिस इज ए परफेक्ट स्केयर। ओके क्लियर। तो इस तरह बच्चों ये सम जिहड़ा तुसीं करोगे क्लीयर होगा, मैनूं लगदा किसी बच्चे ਨੂੰ कोई दिक्कत नहीं होएगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, आराम नाल हो जाने वाला है। नैक्सट हुण असीं करांगे क्वेश्चन नंबर 7। कल भी मैं कराया सी 7th क्वेश्चन सॉरी, ते अज दोबारा असीं कर लिया, ठीक है। कल मैं कहा सी तुहानूं कि कल असीं दोबारा कर लांगे। तो अज हुण साडा नैक्सट जिहड़ा सम है 8th भी स्टेटमेंट बेस्ड है, 9th भी स्टेटमेंट बेस्ड है और 10th भी बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड है। तो इत्थे फिर एक्सरसाइज साडी फिनिश हो जाएगी। तो 8th क्वेश्चन की है, 8th क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ए प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन ड्राइव, प्लांटेशन ड्राइव का मतलब है कि पौधे लगाने की मुहिम जिहड़ी आ चालू हुई, ठीक है, जिहदे विच 256 प्लांट्स जिहड़े आ वो लगाए गए, 256 256 प्लांट्स जिहड़े आ वो लगाए गए इन सच ए वे कि इस तरीके नाल लगाए कि हर एक रो दे विच, ठीक है, ईच रो कंटेन as many plants as number of rows, कि जिन्ने प्लांट होण उन्नियां ही ओदियां की आ रोज बनन, रोज का मतलब कतारां बनन, ठीक है, समझे कि नहीं। जिदा मेरे को मान लो चार प्लांट आ, ठीक है, तो 4 प्लांट नूं मैं किद्दां लगाऊंगा, 2 इधर लगाते 2 इधर, देखो जिन्नियां रो बन गई उन्नियां ही कतारां बन गई, बन गया ना रो, इनू आपां रो कह दांगे, एक ही बन गई ओदियां कतारां। जे मेरे को 9 प्लांट आ तो 9 प्लांट नूं किद्दां लगाऊंगा मैं, इस तरीके नाल, ठीक है। आ देखो हुण तुसीं दोनों पाइट से देखो तो इहदा मतलब यह है कि इहदे विच स्केयर बन रहा, की बन रहा, स्केयर बन रहा, ठीक है। साडे कोल 16 प्लांट हुंदे, 16 किद्दां लगने सी, 16 इदां ते ला नहीं लैणे सी ना। आ देखो 16 लाउण दा तरीका की है, आ 12 हो गए, 4 ती 12, 4 चौके 16, एक आ तरीका हैगा। दूसरा तरीका मैं किया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो हुण 4 इस साइड हो गए, 4 ही इस साइड हो गए, तो 16 बन गए ना, ठीक है। तो 256 नूं भी इस तरीके नाल लगाना कि जिन्नियां रो बनन, ठीक है, उन्ने ही की बनन उन्हां दियां जिहड़ियां ने जिन्ने जिन्ने पौधे आ, ठीक है, जिन्ने पौधे आ उन्ने ही उन्नियां ही उहदे विच नंबर ऑफ रोज होण, ठीक है, कि जिन्ना मतलब 1 2 3 4 ये 4 पौधे हैं इस विच, ठीक है, उन्नियां ही रो आ, 4 इधर नूं की आ कतारां, देखो 1 2 3 4 इस तरीके नाल है, तो उन्नियां ही उहदे विच कतारां होण, ठीक है। तो इहनूं हुण आपां किस तरीके नाल लगावांगे, ये उन्होंने पूछा कि किन्ने प्लांट होने चाहिए ने, इधर मान लो आ तुहाडे कोल पौधे हो गए और ये ओहदियां कतारां हो गई, समझ गए, ठीक है। जिन्ने प्लांट 4 प्लांट 4 ही कतारां, ठीक है, 4 प्लांट 4 ही कतारां बन गई, 1 2 3 4 4 कतारां बन गई अपनी, समझ गए गल नूं, ठीक है। एक कतार दे विच किन्ने आ, देखो 1 2 3 4 आ 4 पौधे हो गए, ठीक है। इनू एक कतार मान लीए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कतारां साडे को ते 4 ही पौधे हर एक रो दे विच, ठीक है। इस तरीके नाल आपां 256 नूं भी लगाना है, तो ये तो सौखा ही हो गया। फिर इहदा मतलब इत्थे की आ, इत्थे तुहाडे कोल एक स्केयर बन गया, ठीक है, एक ही बन गया एक स्केयर, स्केयर समझदे हो, स्केयर दीयां सारियां साइडां जिहड़ियां ने बराबर होंदियां, इहदा मतलब जिन्ना इधर होवे, जे ए आ दी साइड तां आ भी ए ही है, जे एक साइड ए आ ते दूसरी भी ए ही आ, इट मीनस ਇਹਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦੀ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਸਾਈਡ, ਓਕੇ। ਤਾਂ 256 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 250 ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 256 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ यानी स्केयर रूट, ठीक है, स्केयर रूट जिहड़ा है वो तुहानूं पता है 16 हुंदा है, यानी कि इहदे अगर तुसीं फैक्टर बनाओ तो तुहानूं पता 16 16 256 हुंदे ने, सारे बच्चों नूं पता होएगा। तो इहदा मतलब इत्थे 16 कतारां बननियां, सिंपल जी गल आ, पर उहनूं लिखना किद्दां है, तुसीं 256 दा पहलां की बनाना है, पहलां उहदा वर्गमूल कड्ढना है, ठीक है। ध्यान नाल मेरी गल नूं समझिओ। तो तुसीं इत्थे मान लेना सब तो पहलां कि जेकर जिहड़े नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स ते नंबर ऑफ रोज अगर ये बराबर करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स ते नंबर ऑफ रोज अगर तुसीं बराबर करने हैं, ठीक है, तो इहदा मतलब
आ भी x और ये भी x, ठीक है, दोनों बराबर करने हैं। तो सानू बच्चों 256 ਨੂੰ इस तरीके ਨਾਲ डिवाइड करना पऊगा कि वो की है, वो दो पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ, दो इक्वली पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड हो गए, यानी कि ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ बन गया एक तरह ਦਾ, ठीक है। जिन्नियां रोज आ देखो, जिन्नी आ वाली साइड उन्नी ए वाली साइड, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ बन गया, ठीक है। तो ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो 256 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ साइड इंटू साइड ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। इट मीनस ਇੱਥੇ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ और इतने 256 आ गया। x ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ रूट, ठीक है। मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ 2 ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, 1/2 ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 256 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਵਰਗਮੂਲ। ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕੁਅਰ रूट ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। कोई भी मैथड अडॉप्ट कर सकते हो। जो तुम इस तरीके ना करोगे तो फैक्टर बना लेने, ये पहला 128 ते जाएगा, फिर 64 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 दूनी 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। हुण देखो सारिਆਂ ਦੇ दो पेयर ਜਿਹੜੇ बनते पे, किन्ने पेयर बने, 1 2 3 4, तो चार बारी 2 2 है, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू कितनी 16 आ रही है। वैसे भी तो मैं पहले ही दसता ही कि इतने 16 आंसर आना, ठीक है। तो साडा आंसर है 16 आएगा कि 16 पौधे जिहड़े आ तुसीं वो इस तरीके नाल लगाओगे तो इदां ही वो पिछे पिछे उहदियां जिहड़ियां कतारां बनदियां जाणियां, ठीक है। 16 कतारां बन गईयां, 16 उहदे विच पौधे लग जाण। ओके क्लीयर, ठीक। जिद्दां मर्जी समझ लो तुसीं, मैं इधरों कहा सीगा भी आ कतारां मान लो ते आ पौधे मान लो, ठीक है। जे इधरों देखते हो, जे इधरों देख रहे हो आ तुसीं कतारां मान लो 4 ते 4 पिछे पौधे होर ला दो, तुहाडी मर्जी, जिधरों मर्जी देख लो, ठीक है। तो कंसैप्ट नूं ध्यान नाल समझो। 256 आ 256 दा दिमाग च सीधा ही आ जाना चाहिए कि 256 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ रूट है 16 ਹੁੰਦਾ। 16 ਦਾ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 16 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। 16 ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਟਾਫਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ NMS ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਟਾਫਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो अगला हैगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये बच्चों हुण क्वेश्चन की है, देखो ध्यान नाल समझियो। 9th क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये तुहाडे कोल बच्चों आ गई एक स्क्वायर, तो ये आ गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों की हुंदा, देखो मान लो एक साइड जिहड़ी आ वो ए आ ते दूसरी भी ए होएगी स्क्वायर विच, स्क्वायर तां यही होया ना। तो स्क्वायर दा एरिया जिहड़ा हैगा वो ए इंटू की हो गया ए, ठीक है, लग गया पता। तो मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर अगर तुहानूं रिस्पैक्टिव एरिया पूछया तो एरिया ऑफ सब तो पहला स्क्वायर वो किहदे बराबर आ जाना, ए इंटू ए। सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिहड़ा है वो किहदे बराबर होएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दे विच की हुंदी है लेंथ और एक हुंदी है ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो L इंटू की आ गया B। हुण L की वैल्यू तुहानूं दित्ती है, देखो रेक्टेंगल दीयां साइडां दित्तियां कि उहदी लंबाई जिहड़ी है वो कितनी है, लेंथ हैगी है 27 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ जिहड़ी है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझे मेरी गल। ते तुहानूं पुछया की है, तुहानूं पुछया है कि स्क्वायर दी साइड किहदे बराबर होएगी जी, स्क्वायर दी साइड किहदे बराबर होएगी। देखो a इंटू ए की बन गया ए स्क्वायर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 27 नूं तुसीं मल्टीप्लाई करता 12 दे नाल, यही होया ना एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल दा एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हुंदा है, स्क्वायर दा एरिया साइड इंटू साइड हुंदा है, ठीक है। तो ये 27 इंटू 12, 27 नूं जदों 12 नाल मल्टीप्लाई करूंगे तो बच्चों ये है ना 324, 324। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ 324 ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 18 ਦਾ ਕਿ 19 ਦਾ, 18 ਦਾ, ठीक है। तो इत्थे 18 आ जाना, ओके। तो मतलब 324 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ फाइंड आउट ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 18 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, यानी कि 324 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 18 into 18, यानी कि ਇਹ ਆ ਗਿਆ 18 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। तो इधर ਕੀ ਆ e ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟ ਗਿਆ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ
18 सेंटीमीटर। ठीक है, पेपर विच इदां करना है तुसीं, पर पहला समझ के आ, पहला उन्होंने समझना जरूरी है तुहाडे लई, समझे कि नहीं। ठीक है, तो बड़े सौखे तरीके नाल मैं तुहानूं दस दिता, ये हुण तुहाडे अपनी अंडरस्टैंडिंग है भी तुसीं किदां करदे। बाकी 324 दा जे तुसीं प्राइम फैक्टराइजेशन नाल वर्गमूल कढदे हो वो भी बहुत वधिया, उदा भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो चलो स्केयर रूट नाल रिलेटेड आ, पर आपां डायरैक्ट भी कर सकते, क्योंकि दिस चैप्टर इज बिलोंग टू स्केयर आल्सो। 324 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 18 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो 18 ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਰਤੀ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਗਏ ਤਾਂ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, some students raised fund to help an orphanage and if the number of if the total funds collected was, ਜਿਹੜਾ total fund ਹੈਗਾ ਉਹ collect ਹੋਇਆ 3136 and each student contribute the amount equal to the number of students, find the amount contributed by each student। ठीक है, कितनी contribution हर एक student ने की। क्वेश्चन की है कि एक ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਤੀ 1 सेकेंड, हाँ जी कंडीशन ये दे देती कि ਜਿਹੜੇ ईच स्टूडेंट जिन्ना कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जिन्ना वो हिस्सा पाਉਂਦਾ है, ठीक है, वो अमाउंट इक्वल आ किहदे नंबर ऑफ ਜਿਹੜੀ अमाउंट वो मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे, ठीक है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे इक्वल है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मेरी गल नूं ध्यान नाल समझियो कि मान लो तुसीं किसी चैरिटी नूं पैसा देना है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 50-50 ਰੁਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 50-50 ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਈ 56 ਰੁਪਏ 56 ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 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 ਰੁਪੀਸ ਆਏ 56 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ कि एक बच्चा हैगा उन 56 रुपए दिते, दूसरे ने 56 दिते, तीसरे ने 56 दिते, इदां कंट्रीब्यूशन हो गई सारियां विच इक्वल हुई। ठीक है, तो फिर वो जिन्ना पैसा इकट्ठा होया, ठीक है, वो पैसा जिहड़ा सीगा वो उन्होंने चैरिटी नूं दे दिता। समझे मेरी गल। ठीक है, तो इत्थे हुण क्वेश्चन हैगा कि सम स्टूडेंट रेज दी फंड हेल्प दी ऑर्फनेज इफ दी टोटल फंड्स कलैक्टेड, कितना कलैक्ट किया गया फंड हैगा 3136, पैसा कितना इकट्ठा होया उन्हां को 3136। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट ने इक्वल अमाउंट के विच कंट्रीब्यूशन की है, हर स्टूडेंट ने इक्को जिहा पैसा दिता है, हर स्टूडेंट ने की किया इक्को जिहा पैसा दिता है, किसी ने वध नहीं किसी ने घट नहीं। ठीक है, इक्को जिहा पैसा, समझे मेरी गल। तो उन्होंने फाइंड करने का तरीका की है, कितनी अमाउंट कलैक्ट की, देखो ਇਹਦਾ सिंपल जिहा हो गया ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि हर एक स्टूडेंट नूं इक्को जी कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि असी इत्थे फिर उहदा स्केयर रूट ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, 36 है इत्थे 56 नहीं 36। ठीक है, उहदा स्केयर रूट ही फाइंड आउट करांगे, तो स्केयर रूट इहदा विचों फाइंड आउट कर लो। देखो इहदे प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड दे नाल आपां कर सकते हैं, क्योंकि हले तक तुहानूं प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड ही है, उस तो बाद अगली एक्सरसाइज में चलो कुछ होर आएगा। तो 2 1 2 2 5 10, उस तो बाद 6 2 12 हो गया, 8 6 8 2 16, उस तो बाद नैक्सट इत्थे आ गया 784 392 196 298 47 7। ठीक है, तो 2 2 2 2। ठीक है, तो ये देख सकते हो 3136 ये की है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 दो बार है, तो जो इतने स्केयर रूट का सिंबल पा दूंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू कढ़नी है तो स्केयर रूट ही होएगा, तो एक्स की पावर 2 आ गई ना इक्वल टू, तो जो पावर 2 दूसरी साइड जाएगी तो स्केयर रूट बन जाएगा। ठीक है,
मैं तो चलो तुहानू बेसिक कंसैप्ट ही उहदा दस दिता, इस करके इथों 2 एक बार बाहर आ गया, इथों 2 एक बार बाहर ले आना, एक बार 2 इथों आ जाना, 7 इथों आ जाना। ठीक है, तो सारिਆਂ ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू कितनी आ गई 56। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट जिहड़ा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 56। ठीक है, हर एक स्टूडेंट ਨੂੰ कितना 26 कंट्रीब्यूशन जिहड़ी आ वो है। ओके, क्लीयर टू ऑल। तो ये बच्चों 10th क्वेश्चन सीगा, बहुत ईजी सी, बस ये है कि थोड़ा जिहा कंसैप्ट बेस है, कई वेले असीं छड्ड दिंदे आ क्वेश्चन। ठीक है, तो ਉਹਦੇ करके सानू फिर दिक्कत आती है, पर तुसीं इहनूं छड्डना नहीं है। तो ये प्लीज़ बच्चों इन्हां नूं तुसीं हुण कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। ये एक्सरसाइज तुहाडी कंप्लीट हुई, अगली एक्सरसाइज हुण अगली बार असीं करांगे।